women who have more pregnancies actually tend to have less rates of ovarian cancer. Because, or women who are breastfeeding as well have less rates of ovarian cancer. Warren Buffett, he drinks cherry coke every single day. And हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में बताया गया है 3 बारी जो खाए वो रोगी, 2 बारी जो खाए वो भोगी, 1 बारी योगी. So the T cell is basically a white blood cell in the body. He was curious कि इस white blood cell को मैं कैसे यूज करूं to attack the cancer cells. That is what immunotherapy is. The only thing is that people should never fry olive oil because olive oil का smoke point, boiling point बहुत नीचे है compared to ghee. So if you want the secret to stop aging, then just don't eat sugar. Olive oil is number 1, then ghee and mustard oil. सरसों का तेल घी number 2 पे आता है. Number 1 olive oil. क्योंकि olive oil में omega 3s सबसे ज़्यादा होते हैं. घी में होते हैं polyunsaturated fats, उससे हमारा good cholesterol बढ़ता है. उसमें butyrate antioxidant होता है, अच्छा होता है. But still olive oil I would say number 1. जो हमारे भारत में कहते हैं fast चीज़ क्या है दुनिया में? People think it's the speed of light, but it takes nearly 7 minutes in light speed to go from the sun to the earth. So the fastest thing is the mind. So hello दोस्तों, welcome to the प्रतीक शो. एंड आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है. आपको पता है प्रतीक शो पे डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स आते हैं आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देने, आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपकी इम्प्रूवमेंट कराने के लिए. तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं. And he is Dr. Ravi Gupta from USA, and he is the oncologist and a hematologist. अपनी एक्सपर्टीज से एंड अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, उनको नई जिंदगियाँ दी हैं. तो आज उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, उनकी नॉलेज से जानेंगे इस फील्ड की डेवलपमेंट्स के बारे में, जानेंगे कि कैसे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स. एंड वन थिंग मोर, डू मस्ट चेक आउट इज इंस्टाग्राम. उनके इंस्टाग्राम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. एंड वी सल्यूट हिम कि दैट वो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस लोगों के साथ शेयर करते हैं, इनसाइट्स. सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द शो. सो यू आर वॉचिंग डॉक्टर रवि गुप्ता ऑन द प्रतीक शो. So how are you, sir? It's an honor to be on your show, and just respect to you, as you were sharing to me earlier. You are trying to genuinely provide true knowledge to serve the people, and I just salute you in this honorable, altruistic venture of yours. Thank you so much, and it's a pleasure for us that आपने अपना टाइम निकाला है. So sir, how is life going in USA? Life is good. I'm visiting here, and I'm excited to come back. And I'm just very grateful for everyone who's teaching me so much. And I'm just looking forward to just being able to share some of that knowledge that I've been given, that I've been gifted. The best gift that someone can give you is knowledge, because Right. that no one can take from you. So if you want like any gift, develop your mindset, develop yourself, because no one can take that from you. Yes, and I'm just excited to be given that opportunity to share on your channel, which I, and respect to you. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you. And आपने ऑन्कोलॉजी एक सब्जेक्ट को चूज़ करा, एंड आप कैंसर का लोगों को इलाज देते हो, लोगों का इलाज करते हो. सो कैंसर एक जो शब्द है वो लोगों के दिमाग में एक चीज़ में बैठा हुआ है कि दैट डर. एक्चुअली आप बोल सकते हो कि दैट डर का दूसरा नाम लोगों को कैंसर लगता है. तो बोला जाता है ऐसा कि दैट 42% जितने केसेस होते हैं कैंसर के वो प्रिवेंटेबल होते हैं, यानी कि अगर वो स्टेज 0 पे है तो वो 1 तक नहीं जाते. तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए हर किसी को कि वो कैंसर से बच सके? Agreed, you are right that about half of the cancer cases are preventable, definitely. अगर किसी को भी ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो unnecessarily हम करते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि अदर थिंग्स लाइक एक्सपोजर टू पोल्यूशन. सो उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, या जैसे कि स्ट्रेस इन इटसेल्फ, ओबेसिटी, all of these things contribute to the development of cancer.
So cancer is about 50%, 42% is modifiable risk factors, and the अच्छा rest is due to non-modifiable risk factors, including genetics. What that means for us, that cancer is number one, preventable, and number two, I'd like to add that cancer is actually curable as well. So if it's caught early, so the game ओके is prevent it and catch it early. बट एक्चुअली होता क्या है कि दैट कैंसर को पकड़ पाना ही मुश्किल होता है जब वो स्टेज 1 स्टेज 2 या स्टेज 3 तक पहुंच जाता है तब पता चलता है लोगों को दैट दे हैव सफरिंग फ्रॉम कैंसर सो इसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है अर्ली स्टेजेस क्या साइंस होते हैं कि दैट आपको पता चल पाए I agree. Symptoms are typically a manifestation of an advanced metastatic or advanced process. So for that, the best way is go to the doctor and get your screenings done. तो screenings का मतलब है कि अगर 45 साल के हैं, 45 years old, make sure start getting some GI screening, colorectal screening, meaning that get a colonoscopy, yeah, get a stool test. Basically, your doctor will give you a card, you'll put some stool on there. If it has blood, then you'll be referred for a colonoscopy. If it doesn't Okay. have blood, but that test is, I'd leave that up to the gastroenterologist because that test is debated as to the effectivity and the efficacy. There are other tests, Cologuard, this, that. But the point is, get your screenings done. Get your breast mammogram starting 40. Get your lung cancer testing starting 50 to 80. And the biggest thing I would say is 60% of Indians believe marketing trends. So stay away from that. Smoking and alcohol will definitely kill you. Smoking has killed 8 million people in this world last year. Alcohol, 1.9 million people. And it's easy for me to say from here that, hey, don't do this, but I'll tell you the scientific evidence. Alcohol, one drink a day, ages your alcohol, one drink a day. Research has shown that 16 grams of alcohol, which is basically about 1.5 American beers. या जापान में एक बियर में 8 ग्राम अल्कोहल होता है, तो जापान में 2 बियर्स, या अगर रशिया की जो 24 ग्राम अल्कोहल एक बियर में होता है उसका अबाउट हाफ. अगर आप इतना 16 grams alcohol रोज लेंगे for about 1 year, that ages your brain by about 2 years. So not just cancer, but these also have other manifestations as well. So Okay. yeah, this is just for the benefits. It's not for like don't do this because it's bad. It's just that it's bad for you scientifically. जैसे आपने बताया स्मोकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा या ड्रिंकिंग अल्कोहल की वजह से काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि दैट आपको कैंसर हो सकता है बट आप जैसे देखते हो कि दैट 19% जो कैंसर के केसेस होते हैं दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग राइट जब लोग स्मोकिंग करके कैंसर को डेवलप कर लेते हैं और वो आपके पास आते हैं तो क्या उनको गिल्ट होता है कि दैट उन्होंने वो स्मोकिंग क्यों करी जब उनको सब मना कर रहे थे या डॉक्टर्स जब मना करते हैं या टीवी पे एड्स जब आते हैं कि दैट स्टॉप स्मोकिंग यू कैन हैव कैंसर इन फ्यूचर क्या उनको गिल्ट होता है जब आपके पास पेशेंट आते हैं ऐसे टिपिकली जो ये पेशेंट्स होते हैं जो स्मोक करते हैं, मैं खुद ही सोच रहा हूँ, तो उन्हें पता होता है जब वो स्मोक कर रहे होते हैं कि अच्छा ये होगा. बट आई वुड से कि मोर पेशेंट अवेयरनेस इज़ नीडेड. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज फिजिशंस कि जो हमें काउंसलिंग करनी होती है अगेंस्ट दीज सीमिंगली कॉमन, क्योंकि हर एक पेशेंट से हम पूछते हैं कि अच्छा डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक, बट हमें काउंसल करना चाहिए इफ़ेक्टिवली कि हाउ बैड इट इज़. लोगों को पता नहीं है, काफ़ियों को नहीं पता होगा कि स्मोकिंग से क्या क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन दैट कैन हैपन फ्रॉम स्मोकिंग. All these cancers can happen from smoking, and if people knew more, I think at least one person would not do it, and that would be, even if one person were saving, that's good. So guilt, yes, and also sometimes surprise. And वो सिचुएशंस होते हैं गिल्ट भी होता है और सरप्राइज भी होता है कभी कभार ओके एंड इसमें ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसल देम, क्योंकि जो प्लेसिबो इफेक्ट है, वो माइंड का जो इफ़ेक्ट है, और नोसीबो इफ़ेक्ट मतलब माइंड का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी. तो ये दोनों चीज़ें हैं जो स्टडीज़ में देखते हैं कि मतलब अच्छा ये ग्रुप को लगा कि अच्छा ये दवाई ले रहे हैं, अच्छा तो इनको प्लेसिबो इफ़ेक्ट यानी माइंड की वजह से उन्हें लगा कि वो दवाई उनमें जारी है, तो उनका माइंड इतना पावरफुल है कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करी टू सम परसेंटेज. सो इट्स कॉल्ड द साइकोसोमैटिक इफेक्ट. All this anxiety, all this stress, also it
does all these things. Stress is a very non-specific term. अगर हमें जैसे for example कोई disease process का reason नहीं पता, तो हमें क्या कहूँ, मैं अपने की बात करता हूँ, अगर नहीं पता होता मुझे, तो I'll say that it's probably stress induced. And stress is a vague term, but it's an important term because stress raises cortisol. And cortisol, which is steroids, which is prednisone, basically, that is not good. It causes obesity, causes other things long term, you know, and just also just a lot of anxiety and impacts your daily life. तो स्मोकिंग, जैसे जो लोग रेगुलर स्मोकर्स है, जो डेली स्मोकिंग करते हैं, या फिर जो स्मोकिंग नहीं करते, जो पैसिव स्मोकिंग का शिकार होते हैं, लाइक आप इंडिया की बात करो, दिल्ली की बात करो, हेयर इज सो मच ऑफ पोल्यूशन, बहुत पोल्यूशन है इधर, तो क्या पोल्यूशन से भी इफेक्ट होता है कि दैट आपको कैंसर हो सकता है इन फ्यूचर? पोल्यूशन का भी इफेक्ट हो सकता है. दिवाली टाइम पे जब यहाँ पे दिल्ली में या बहुत पोल्यूशन होता है, तो um, uh, I don't know the exact amount of the cigarettes that you're inhaling, but if you are inhaling some of the pollution, then you are definitely smoking equivalent of some amount of cigarettes during that time. Definitely. Okay. Yes. So pollution is affecting you. इस कैंसर को प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है इन एनी फॉर्म? लाइक इफ आई एम अ पर्सन, और आज जैसे आप देखते हो कि दैट कैंसर अब कॉमन हो गया है, इट्स अ कॉमन डिजीज. पहले ये होता था कि दैट हर मतलब 100 में से एक आदमी को कैंसर होता था, पहले ऐसा होता था, या पहले हो सकता है डायग्नोसिस इतने स्ट्रांग नहीं थे कि दैट पता ही नहीं चलता था. बट अब आपको पता चल सकता है कि दैट आप हेयर कर सकते हो अपने आस पड़ोस में कि दैट इसको कैंसर हो गया है, उसको कैंसर हो गया है. कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है कि दैट, क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो एक पर्सन को लेने चाहिए लाइफ टाइम में कि दैट वो सोच सके, एटलीस्ट वो प्रिवेंट कर सके कि दैट उसको कभी कैंसर ना हो? एक बुक है द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, उसमें एक लॉयर है, थ्राइविंग प्रैक्टिस है उसकी, बट ऑल दीज डिजीजेस, वो अपनी फेरारी बेच के हिमालय में पर्वतों में जाता है, ऋषियों के साथ रहता है, एंड ही लर्न्स 5 रिचुअल्स इन दिस वन सीक्रेट रिचुअल. एंड आई जस्ट शेयर सम ऑफ दोज रिचुअल्स एंड पीपल कैन रीड दिस बुक. बिल्कुल. उसमें है एक रिचुअल लाइव फूड्स. सो द रिचुअल ऑफ लाइव फूड्स, एंड अगर लाइव फूड्स खाए जाएं, यानी वो खाने जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो अनअल्टर्ड हैं फ्रॉम द earth, yeah, matlab that are live foods, they have living cells, then it says, and also you will, anyone that eats these live foods will also be able to share the same health that these rishis do, living long lives on some level. And so avoid processed foods, avoid anything that is altered in nature. So for example, smoking, people can say that, oh, it's a natural plant, but it's been altered because it's been concentrated. Or alcohol, it comes from a natural source, comes from wheat or something, but it's been altered. So another thing is, I'm not saying like there's just scientific side effects of these things, so nothing like judging like someone, but it's just that it's just bad for you. ऐसा देखा जाता है कि दैट वुमेन्स में ज़्यादा कैंसर के चांसेस होते हैं, या वुमेन्स को ज़्यादा कैंसर होता है, ऐसा क्यों है? दैट वुमेन्स को क्यों ज़्यादा कैंसर होता है कंपेरेटिवली टू द मेन? डिपेंड करता है कौन से कैंसर की बात कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर, दैट वुड मेक सेंस. वुमेन especially having a reproductive system that is limited in terms of amount of years. So women have typically a limited number of eggs that they can give during their lives. So every woman has this. So all these, and women have naturally they make everyone's lives beautiful by sacrificing their own health but they've been given these hormones like estrogen, progesterone, all these things. They have so what happens is all this fertility, it's very, and I'll leave it to the gynecologist also to explain this topic, but it's very important for them to stay away from toxins, to be in environments that are healthy to support their fertility. Women who are smoking, women who drink alcohol, as you said, are definitely more predisposed to cancer, to more diseases.
So the reasoning is that they have a system that requires them to be fertile. So if they're not, so for example, women who have more pregnancies actually tend to have less rates of ovarian cancer. Because, or women who are breastfeeding as well have less rates of ovarian cancer. Because the egg, which ruptures the ovary to be secreted, every single time it ruptures the ovary, it increases the risk of some ovarian cancer at some level. And that doesn't happen if the woman is not menstruating. So when the woman is pregnant, when she's breastfeeding, when she's, doing that, then she won't have that egg rupture and she'll be less predisposed to ovarian cancer, for example. But that's just a limited type of cancer. There's many various types of cancers. Right. So, but the point is that as long as women are, doing what they are naturally intended to do, it is good for them. Yeah, that's what I'll say. But one thing I'd like to add is that women who choose not to be pregnant, that's also fine. There's always a balance, in terms of, with each activity, there's an increase in risk of some cancer and decrease in some others. So it's just a very balance, but women are definitely more predisposed. ये reason है कि that women's को ज़्यादा women का system is designed to have them support life. So anything that is against life, like all these toxins, that will impact their fertility. And they will, due to all these hormones, due to all these, due to the system that requires them to support life, anything that shortens this leads to more effect in their body systems. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे माइंड में. ऐसा मैंने काफ़ी बार सुना है, आप तो हो सकता है डील भी करते हो ऑन डेली बेसिस. आप देखते हो बहुत बारी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिन्होंने आज तक स्मोक नहीं करा, जिन्होंने कभी ड्रिंक को कंज्यूम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा. दे आर गुड ऑन डाइट, दे एक्सरसाइज डेली, बट फिर भी उनको कैंसर हो जाता है. बट ऐसे भी केसेस होते हैं जो डेली सिगरेट स्मोक्स करते हैं, जो डेली ड्रिंक कर रहा है, बट फिर भी उसको कैंसर कभी नहीं होता. ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि दैट जो अवॉइड कर रहा है उसको भी हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि दैट जो अवॉइड नहीं कर रहे बट फिर भी इनको नहीं होता. व्हाई इट्स हैपन? क्यों होता है ऐसा? इसका रीज़न है जेनेटिक. तो जैसे एंजेलिना जोली who has the BRCA1 and 2 gene mutation, Angelina Jolie who has the BRCA gene mutation, basically, she had to undergo a bilateral mastectomy and a bilateral oophorectomy. Basically, she had her ovaries and breasts taken out because she was predisposed to ovarian and breast cancer. So there's several different genetic syndromes that predispose individuals to cancer. Okay. And तो ये syndromes कौन-कौन से होते हैं? So there's a various list, but basically, I'm forgetting the name of the diseases, but basically there's several diseases that I can give examples of. For example, but what happens is that there are some, oncogenes in the body. Basically, oncogene is anything that causes the, that would promote the development of cancer. And there's tumor suppressor genes that would oppose the development of cancer. So any alteration in these genes would, so for example, if there's more development or more effect on the oncogene, then there would be more so development of cancer. If there's a negative effect on the tumor suppressor, meaning that it's stopping the tumor suppressor, then it's releasing the brakes, the cancer goes up. So some genetic syndromes include BRCA, which is the most common. So this is basically a genetic syndrome in which people are predisposed to more breast cancer, ovarian cancer, men prostate cancer. Other cancer syndromes like xeroderma pigmentosum, तो ये एक syndrome है जिसके अंदर जो लोग सनलाइट से एक्सपोज हो जाए उनको ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्किन कैंसर के. ऐसे ऐसे काफ़ी वेरियस वो हैं सिंड्रोम्स. लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ सिंड्रोम्स जिनको लोगों को है उन्हें ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकते हैं कैंसर के. ये भी है कि हमारा जो डीएनए जीनोम है इतना वास्ट है कि कुछ लोग प्रीडिस्पोज्ड होते ही हैं इवन दो देयर इज नो सिंड्रोम फॉर दैट. अच्छा. एंड दैट्स व्हाई दे टेंड टू डेवलप दैट डिजीज अर्लियर ऑन. And if they had been exposed to those modifiable risk factors,
then they may have developed it even earlier. Now, those individuals who are smoking and they are living long, those are atypical cases. Those are rare cases typically. Okay. But that are living, that are beyond 100. I've seen cases like that on YouTube, that people are living beyond 100 but they're smoking every day. Or Warren Buffett, he drinks cherry Coke every single day, but he's still he's in his 90s or more near 90 and he's still thriving. So these are ये रेयर है. these are rare cases, but the thing we can learn from them, जो हम चीज़ इनसे सीख सकते हैं, जो मैंने एक जैसे पेशेंट से देखा मिला था, 86-year-old पेशेंट मेरे पास आया और मुझे क्या था इनिशियल. सो अ पेशेंट केम टू मी एंड वो भाग के आ रहा था. उसने कहा, डॉक्टर लोग मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, पुशअप्स कर रहा हूँ, और मेरे से भी एक्टिव, भाग भाग के मतलब इन द एयर में दिखा रहा था. तो मैंने देखा उसकी एज थी 86. मैंने पूछा क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि, and he's a Spanish patient, very pleasant, and he said that I do swimming exercises, I apply honey on my face. And I said that what type of honey is this? He said just normal honey. And I said, okay, what else? Then I realized, and he told me that I don't take stress. Basically, I have a positive attitude. So as we spoke about the psychosomatic effect, that all this anxiety, all this stress, all this cortisol, if we have a positive attitude, then that will go a long ways in helping us understand these people who are living long lives even while they're using all these risk factors. ओके. Yeah. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि दैट आपका जो पर्सनल साइकोलॉजी है, अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब आपकी बॉडी खुद लड़ती है कैंसर सेल से. बॉडी का सब कुछ स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं. इसके पीछे ऐसे तो मैं कोई साइंटिफिक इसका मैं ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन एक ये है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया स्टडीज़ में कि देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेसिबो इफेक्ट. पार्टिसिपेंट्स जिनको हम दवाई देते हैं वर्सेस नहीं देते, जिनको मिलती है, कोई भी स्टडी होती है तो उसमें हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो उसमें हम दवाई देते हैं, उसमें हम ब्लाइंड कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि अच्छा इन पेशेंट्स को हम दवाई देंगे और इनको नहीं देंगे. बट जिनको नहीं दे रहे उनको लग रहा है कि हम दे रहे हैं. तो फिर क्या होता है कि जितना टाइम हमने इस्टेब्लिश किया, लेट्स से 1 year लेटर हम इस्टेब्लिश करते हैं कि अच्छा ये जो 2 ग्रुप्स हैं, हाउ डिड दे परफॉर्म. तो फिर हम उसमें देखते हैं कि अच्छा इन्होंने 44% सर्वाइव्ड और इसमें 20%. बट द पीपल दैट डिडंट गेट द मेडिसिन, 20% सर्वाइव्ड, एंड दैट वुड हैव बीन बेटर had they just been living their normal lives. So that's why mind is very important, as is seen in studies. There is an effect. मतलब कुछ लोग, उनको ऐसा लगता है कि दैट उनको दवाई दी जा रही है, उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट उनको नहीं मिल रहा होता, बट उनका एटीट्यूड वैसा हो जाता है माइंड का. दैट्स वाई उनका क्योर जल्दी होता है. Yes. ओके. आप जब ऐसे किसी पेशेंट के मिलते हो जिसको कैंसर डिटेक्ट हो गया है, एंड आपको पता है कि दैट इन दिस लाइफ हर किसी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अगर एक माँ है तो उसके बच्चे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, एंड अगर कोई बेटा है तो उसका करियर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. तो जब उनको पता लगता है कि दैट दे हैव डिटेक्टेड विद कैंसर, उनको कैंसर हो गया, तो क्या साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, और डॉक्टर्स क्या करते हैं उस वक्त, उनको कैसे बताते हैं, कैसे संभालते हैं कि दैट या इट्स ओके, आप ठीक हो सकते हो. वेरी गुड क्वेश्चन, जिसको हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं. मुझे स्टार्टिंग में आता नहीं था, बट मेरे काफ़ी मेंटर्स हैं जिन्होंने सिखाया एंड मुझे शैडो करने दिया एज दे ब्रोक द न्यूज़ टू देयर पेशेंट्स. पेशेंट्स इन केसेस में मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रांग होते हैं फॉर सम वेरी हमारे पेशेंट्स बहुत मतलब जस्ट एनी पेशेंट दैट आई ब्रोकन द न्यूज़ टू, देव ऑलवेज बिन वेरी strong at that moment. So just that goes to show the human psychology, that just people are very strong on the inside when given the diagnosis. That's what my experience has been. Now, the way we do it, there's a protocol called the Spikes protocol. Basically, we establish a setting. So we'll take them to an environment that is calm. We'll make sure that everything is going is good, and then we'll assess that how much do they know, how much do they want to know, and it also varies based on like culture. Like in India, for example, you'll involve the family, whereas in America there is emphasis on the patient is everything. India में भी है, but India या foreign countries में, US में भी,
we involve this, but in foreign countries you involve the family a bit more in the decision making. So yeah. But the way is that you ask the patient that how much do you know first. कभी उन्हें पता हो कैंसर है उन्हें या नहीं. अगर नहीं पता है तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप कितना जानना चाहते हैं. फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उनको बताते हैं कि अच्छा you tell them the diagnosis. We don't skip around the subject. You have this. आपका जो 5 year सर्वाइवल है 5 साल में ये स्टडीज़ ने ये दिखाया है एंड ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये देखें कि डेटा हमारे पास पूरा हो ताकि हम पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को जब उन्हें कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से वो जवाब दे सकें. एक चीज़ है इसमें हाँ, तो उसके बाद ऑब्वियसली want to make sure that you have some water, some napkins, so that you can comfort the patient. It's very important to comfort the patient at that moment. It's very good अगर उनके पास support हो to assess, घर पे अकेले ना रहते हो अकेले to establish like some social support for them, social groups. फैमिलीज का बहुत बड़ा रोल रहता है. हाँ, फैमिलीज का बहुत बड़ा रोल रहता है. जैसे हम कैंसर की बात करते हैं, आज भी कैंसर का प्रॉपर क्योर नहीं है, दैट 100% क्योर कि आप कैंसर को 100% क्योर कर सकते हैं. बट आप एक्सपर्ट हो, कोई ऐसी चीज़ दैट इज़ वर्किंग करेक्टली और आपको क्या लगता है कि ऑन्कोलॉजी में क्या फ्यूचर है कि दैट हम कैंसर को क्या 100% क्योर कर पाएंगे? मेरे से बाय द वे जस्ट आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग मी एक्सपर्ट, बट देर आर so many experts that are even greater than me, that are helping us get all this research that I'm given the privilege of giving and sharing to the people. And also, I'm grateful for the opportunity you've given me to share my gift, the gift that I've been given to, the people on your show. Now, cancer की therapy बहुत improve हो रही है. अभी in 2014, a new therapy was founded, which is called immunotherapy. Okay. So there are different types of therapies. There's radiation, there's chemotherapy, there's immunotherapy, there's targeted therapy. So all these, what is this? So immunotherapy is basically we use the body's own immune system to fight the cancer. Okay. And इसके अंदर also एक therapy होती है जो targeted therapy होती है कि patient का जो mutation है उसको रिकग्नाइज या रिसेप्टर है उसको रिकग्नाइज करते हुए कोई हम एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दें जो रिसर्च में निकली है. तो पिछले 10 साल में मैं आई मेट डॉक्टर जेम्स एलिसन. ही इज़ अ नोबेल लॉरिएट. ही फाउंडेड he led the revolution in immunotherapy. He's the one who started this in his lab. अच्छा, उन्होंने कीमोथेरेपी स्टार्ट करा? नहीं, immunotherapy. Okay, immunotherapy. But which is a form of chemotherapy. But I met him, and by the way, I asked Dr. James Allison, the Nobel laureate who started immunotherapy. He's at MD Anderson. I asked him that, okay, what would be if you were to tell anyone that, what is the one thing that what is your secret to success? So I asked Dr. James Allison, founder of immunotherapy, what is your secret of success? And he told me curiosity. So just being curious, he was curious about the T cell. The T cell is basically a white blood cell in the body. He was curious कि इस white blood cell को मैं कैसे use करूँ to attack the cancer cells. That is what immunotherapy is. And हमारे Indian scriptures में बताया गया है 3 बारी जो खाए वो रोगी, 2 बारी जो खाए वो भोगी, 1 बारी योगी. कैंसर में ऐसे काफ़ी कैंसर्स में. दूसरी थेरेपी एक आई है कार टी सेल थेरेपी. कार टी सेल थेरेपी में क्या होता है, पेशेंट अपना खून देता है, फिर उसके बाद उस खून को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं एंड उसको री इंजेक्ट कर देते हैं. एंड वो मॉडिफाई कैसे करते हैं, उस पर बस वो रिसेप्टर्स ऐड के लिए एक्शन ऐड कर देते हैं जो उस लुकीमिया का है या ब्लड कैंसर का है. ये कार टी सेल थेरेपी है. ऐसे काफ़ी डिफरेंट थेरेपीज़ आ रही हैं. कार मैक्रोफेज थेरेपी, कार NK सेल थेरेपी, नेचुरल किलर सेल थेरेपी. एंड ऐसे मतलब ये थेरेपीज़ नई आ रही हैं. ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस, माई एडवाइस टू पेशेंट्स हु वांट टू practice alternative medicine, like Steve Jobs, this is what he did. He went to the route of going for alternative medicine, but the mistake he made was that he allowed it to interfere with his prescribed regimen. I'll speak about that. He had a pancreatic
neuroendocrine tumor that was likely low grade. The details haven't been fully released. And his survival he could have been 60%, but because he delayed therapy for 9 months, because he wanted to go for alternative medicine and not pursue this therapy, his survival went from 60 to nearly 10 to 6%, 6 to 10%. So it dropped. So basically, my advice is that, like Steve Jobs, follow the alternative medicine, but don't allow it to interfere with your therapy. And so there's different therapies. Walk in nature. Apparently, trees release compounds that fight cancer that increase your natural killer cells that fight cancer cells. Okay. So walking in nature, walking with trees, it's actually beneficial against cancer as well. So it's everything. Follow doctor's advice, but on the side, just make sure that your healthy habits and your alternative treatments don't interfere with that. Okay. Yeah. मॉडर्न ऑन्कोलॉजी में आजकल रिसर्चेस चल रही हैं कि दैट नैनो रोबोट्स का यूज़ करके भी हम कैंसर को ट्रीट कर पाएंगे आगे, या फिर अभी प्रोसेस क्या चल रहा है इसके ऊपर? नैनो रोबोट्स का अभी रिसर्च चल रही है, बट नथिंग दैट आई नो एटलीस्ट हैज़ बिन रिलीज्ड एज FDA approved, or that has been released as approved for administration. But two things that nano robots would be useful in would be, number one, providing the therapy. The nanorobots would go to the site of the action and then they would deliver the therapy. Or number two is detecting the cancer early. So they could basically track the biomarkers and then they could detect the cancer early. These are the two benefits, but nothing that is approved yet has been seen that I know of. Yeah. ओके, सो न्यूरलिंक की बात करते हैं. एलन मस्क एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ न्यूरलिंक, एंड बहुत फैसिनेट करता है लोगों को न्यूरलिंक कि दैट आपके दिमाग में एक चिप इंस्टॉल कर दी जाएगी एंड उससे फंक्शंस होंगे. तो एज अ डॉक्टर आपके इस पे क्या विचार है? अपने जो हमारे भारत में कहते हैं कि जो सबसे फास्ट चीज़ क्या है दुनिया में, people think it's the speed of light, but it takes nearly 7 minutes in light speed to go from the sun to the earth. हाँ जी. Right? Galaxies को traverse करने में. So the fastest thing is the mind. In less than a second, I can be in Japan right now, in my mind. So the way to release the full strength of the mind is to connect with technology. And I think that Neuralink will allow us to connect our mind and release the full power by connecting with technology. ब्लाइंड साइट एक टेक्नोलॉजी है जो जिसको फास्ट ट्रैक का अप्रूवल मिला है. इलॉन मस्क का इस पे काम चल रहा है, जिसके अंदर एटलीस्ट लो डेटा स्पीड्स की वजह से लो ग्रेड विजन, जो ब्लाइंड लोग हैं जिनको विजन नहीं है, वो चिप के थ्रू देख सकते हैं. ये स्टडीज़ चल रही हैं एंड इसको फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिला है. एक्चुअली में रिसर्चेस चल रही है. हाँ, इसमें एक्चुअली में काम चल रहा है इसके ऊपर. Okay. एंड इसके बेनिफिट्स जो हो सकते हैं इन द फ्यूचर, जो मतलब और एप्लीकेशंस हो सकते हैं पैरालिसिस में, इन just helping us also increase our IQ, increasing our mind speed, interacting with the electronics, maybe also increasing our own abilities, and just helping us against dementia, against other neurocognitive diseases. So see काफ़ी vast applications हैं neurologically. आजकल आप जैसे अपनी वीडियोस में भी बताते हो दैट लोग वेट लूज करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट डाइट प्रोग्राम्स चलते हैं, लाइक वीगन डाइट, और पीपल डू इंटरमीडिएट फास्टिंग. क्या ये सेहत के लिए ठीक है? क्या इनको करना चाहिए? आपकी क्या इस पर राय है, लाइक अपॉन वीगन डाइट? और काफ़ी सारे एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ इनको प्रमोट करते हैं, लाइक विराट कोहली इज़ फॉलोइंग वीगन डाइट, एंड तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर इस चीज़ को करना चाहिए नॉर्मल पर्सन को या नहीं? It's a good question because there's so many diets. It's very confusing. कि क्या करें? Keto diet and so much of diets. There's all these diets. Basically, what it is, one carb has 4 calories. One fat has 9 calories. So keto diet is based, and low sugar diet is also based on the premise that you can get more energy from fat than from sugar,
right? Because 9 calories versus 4 calories. So what happens in fasting is you have enough glycogen in your liver, enough sugar in your body until 16 hours. Okay. No, you have enough glycogen for 8 hours, and then you have enough glycolysis or sugar breakdown happens for until 16 hours. That's what the fasting is. After 16 hours, your brain, which continues to need energy, starts to feed on ketone bodies. So fat starts, which comes from fat. Okay. So after 16 hours, fat breakdown starts. Then at 24 hours, something amazing starts, which is called autophagy. Autophagy, Nobel Prize winning scientist Dr. Yoshinori in 2018 found, he basically researched, and हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में बताया गया है 3 बारी जो खाए वो रोगी, 2 बारी जो खाए वो भोगी, 1 बारी योगी. तो ये हमारे पूर्णिमा के व्रत में प्रैक्टिस किया जाता है, नवरात्रों के व्रतों में. और हमें कोई भी परंपरा रिचुअल दी जाती है तो यही है कि जो ऋषि हैं या द फाउंडर्स, they deemed it so important that they said that let's make it a ritual that people do it even without thinking. So anything that is a ritual that's why it's very important, because the founders felt it so important that they just said just do it without thinking. So बट इसके पीछे एक साइंटिफिक इसके रीजन पीछे साइंटिफिक रीज़न है. फॉर एग्जांपल जो पूर्णिमा का व्रत है उसमें मून फुल उसमें होता है, मून में फुल मून, तो उसके अंदर ताकि मून जो टाइडल फोर्स उसकी ज़्यादा है, टाइडल ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स उसका हमारे पेट पे कम इफेक्ट पड़े, व्रत करना चाहिए. तो इसका ये है रीजनिंग. तो साइंटिफिक रीजनिंग सब चीज़ों के पीछे. अब आपका ये क्वेश्चन था डाइट्स के बारे में. राइट. तो फास्टिंग जो है उसका डॉक्टर योशिनोरी ने 2018 में यही चीज़ को पता किया कि अगर फास्टिंग करते हैं तो ऑटोफेजी होती है. ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मीन्स ईटिंग. तो बॉडी क्या करती है, जो अंदर सारा गंद है जो कैंसर कॉज करता है, डिब्री है, जो ट्रैश है, उसको खाता है. एंड वो उससे फिर कैंसर, डिमेंशिया, ऑटोइम्यून डिजीज़, ये सारी चीज़ें नहीं होती. ओके. एंड अनदर थिंग इज़ लाइक अ सिंकिंग शिप. The ship captain would not throw out the passengers. He would rather throw out like furniture, non-needed things. Body similarly keeps the passengers, keeps the muscle, and throws out the fat, the unneeded stuff. The body is very smart. And the way it does this is the lower your sugar, the higher your growth hormone. So growth hormone is the fountain of youth. जितना आप फास्ट करोगे, जितना लोग फास्ट करेंगे, उतनी देर बल्कि उनका ग्रोथ हार्मोन स्पाइक करेगा, बढ़ेगा. सो दैट्स वाई पीपल आस्क कि अच्छा फास्ट करोगे तो मसल जाएगी. एंड सो मसल थोड़ी सी कम होगी, बट इट्स वेरी small compared to the loss in the other things. So you'll get next level definition like Wolverine, Hugh Jackman. He does this. He does a 16/8 intermittent fasting. Okay. But iska benefit ye hai ki it increases your growth hormone, keeps your skin, keeps your tendons, keeps everything young through growth hormone, which bodybuilders, try to use. You can just do it naturally. Now, different diets wise, you asked vegan diet. Right. Usme ye hai ki plant-based fats are actually better than meat-based fats. Okay. So because the plant-based fats have unsaturated fatty acids, meat-based has more saturated. So the fatty acid profile is better in plants. And also, I won't say that, I want to explain that meats bhi kaun se khaएं. Unprocessed meats, those are fine to eat. But the issue is that studies show that people who eat meat versus live a vegetarian life, studies show that it's better to eat vegetarian. Why? Because typically with meat diets, there's coexisting other things, like, coexisting other habits in those studies, like, smoking or something like that, or like, diabetes, obesity, things like that. So those are confounding factors. So let's just go over the diets. Fasting should be done by everyone. Fasting will improve your diabetes response, improve your insulin sensitivity, decrease inflammation, prevent cancer to some extent, prevent dementia, keep you young. The other is keto diet. So people can adopt this in their daily lives on some level, that stay away from sugar. Okay. So low sugar, high fiber diet, and also adopt good fats. So there's 3 types of fats: omega-3, omega-6, omega-9. 6 is inflammatory, 3 and 9 are anti-inflammatory. So people ask, sorry I'm like saying so much, but if you don't mind, but there's different types of oils. Olive oil is number 1, then ghee and
मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, घी नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 ऑलिव ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल में ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा। घी में होते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, उससे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसमें ब्यूटारेट एंटीऑक्सीडेंट होता है, अच्छा होता है, बट स्टिल ऑलिव ऑयल आई वुड से नंबर 1। द ओनली ठीक है। थिंग इज दैट पीपल शुड नेवर फ्राई ऑलिव ऑयल, बिकॉज ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे है कंपेयर टू घी। तो क्या अच्छा। होता है कि कोई ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट के बियॉन्ड जाओ तो हम्म। उससे टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं, अच्छा, तो एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे। तो ऑलिव ऑयल कैन ऑल्सो बी बैड अगर आप उसको फ्राई अगर करो। उसको फ्राई करो। तो यूज़ दैट ऑन सैलड्स, बट यूज़ द घी, सरसों का तेल फॉर फ्राइंग थिंग्स लाइक दैट। ओके। This concept is seen in the fast food business. They हम्म। reheat the oil all over and over again for fries, राइट। जिससे टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं लाइक एक्रिलामाइड, और उससे कैंसर का चांस हो सकता है। एंड ऑल्सो सीन इन लाइक सम मीट्स, सॉसेज, हॉट डॉग्स, you know nitrates which are found in some meat, if you don't cook them properly, that can lead to cancer causing molecules. So fasting, use a keto based, plant based diet. And another thing, just what I'll add is, if we're talking about diets, then we should look to examples of where people live the longest, and those are called blue zones. तो ब्लू जोन्स 5 हैं। एक तो इटली में सार्डिनिया, दूसरा ओकिनावा इन जापान, तीसरा लोमा लिंडा इन कैलिफोर्निया, चौथा और पांचवा मुझे ध्यान सा नहीं आ रहा अभी, बट एंड देयर अदर प्लेसेस लाइक इज़राइल, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। अब ये है कि वहाँ पे जो हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, एक्सरसाइज, हेल्थ केयर काफ़ी जगह अच्छा है, बट मेजोरिटी ऑफ दीज ब्लू जोन्स में प्लांट बेस्ड डाइट इज़ द मेजोरिटी फैक्टर। ओके। सो एंड ऑल्सो प्लांट बेस्ड डाइट इधर ज़्यादा है। प्लांट बेस्ड डाइट इज़ ज़्यादा है, एंड ऑल्सो एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनीथिंग दे ईट ज़्यादा है। ओके। जैसे बोला जाता है जापानीज़ कंपेरेटिवली टू द वर्ल्ड, जापानीज़ सबसे लॉन्ग लाइफ जापान में होती है, सबसे हेल्दियर लाइफ जापान में है। ऐसा क्यों है कि दैट जो जापानीज़ होते हैं दे आर मच मोर हेल्दियर देन अदर्स, ऐसा क्यों है? जापान में 4 चीज़ें हैं। जापान के बच्चों को देखेंगे अगर, तो उनसे पूछेंगे अच्छा व्हाट्स योर फेवरेट फूड, तो लोग कहते हैं, अच्छा बच्चे कहते हैं यू विल बी सरप्राइज्ड, ब्रोकली, और दे विल गिव नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। The first 8 years of life establish the rest of your life, basically, because the first 8 years of your life establish your subconscious likes and dislikes. तो अब जापान के बच्चे ब्रोकली को पसंद कर रहे हैं, तो just imagine how much their life will be good, especially like health wise. तो जापान में एक तो डाइट उनकी बहुत नेचुरल है, उसमें फिश भी है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं। बिल्कुल। वो हम प्लांट से भी ले सकते हैं, वो हम ऑलिव ऑयल से भी ले सकते हैं। और जो ये ओमेगा 3 होता क्या है, वो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, बट जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो मतलब इतने सैचुरेटेड नहीं होते, दोज आर द बेस्ट। घी में भी कुछ और टाइप्स ऑफ फैटी एसिड हैं, वो हम बात करेंगे, बट जापान में ओमेगा 3 खाते हैं वो, एंड उनका डाइट बहुत अच्छा है। लाइक इट्स लाइक अ मेडिटेरियन डाइट एज वेल, क्योंकि ओमेगा 3 ऑलिव ऑयल में होते हैं जो मेडिटेरियन में खाते हैं। सारे हार्ट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं बल्कि मेडिटेरियन डाइट, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होते हैं, उसमें प्लांट बेस्ड काफ़ी नेचुरल चीज़ें होती हैं। दूसरा, उनके यहाँ बहुत ही रिस्पेक्ट है फॉर एल्डर्स एंड दिस दैट, there's a very very peaceful environment, so that's very anti-stressful, so that's very important. There are some cancers actually that are Japanese are actually more predisposed to, though, like stomach cancer. Okay. And that's because of a high sodium diet. So high sodium diet जो है वो क्या करती है, it predisposes you to infection with a cancer causing bacteria called H. pylori. So H. pylori is actually well documented to cause stomach cancer. So anyone who has acid reflux that is just going on and on and on, they should definitely see a gastroenterologist to see if they should get evaluated for this cancer causing bacteria called H. pylori. And for that they just take antibiotics, specific ones, and they can be saved from cancer. Yes, 2 more things. Lifestyle, meaning their physical activity, they exercise a lot. Even elderly actually practice tai chi, so they have a very, tai chi is a form of yoga. So Japanese are very
It's a kind of Japanese yoga. are, yeah, They so, do. yes, so Japanese are very physically, exercise is the most important thing. Actually, they did a study in which they took 3 participants: obese, smokers, and people who sat more than 11 hours a day. So it's not fear mongering, but the guess whose lifespan was the shortest. It's the people who sat the longest. They sat more than 11 hours. So the exercise is very underrated, but it's very important. When we sit down, especially after a meal, then it reduces our fat breaking down enzyme, lipoprotein lipase activity by about 70 to 80%. So it's very important to walk after eating, especially, or do something. And also, Japan's healthcare system is also very good, but that is seen across the board in places that have long life expectancies, especially like Hong Kong, Singapore. One thing I'll just comment also is that Singapore, it has something very unique. It has a food grading system, A, B, C, D. D being the worst based on the sugar content of food. Okay. So that's another thing, that sugar actually ages you. So if you want the secret to stop aging, then just don't eat sugar. Because people who don't eat sugar, there are case reports that people who don't eat sugar can seem up to 10 to 20 years younger. 10 to 20 years younger. There are case reports, yes. Yes. Yeah. काफ़ी इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी. Yeah. जो लोग एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, हाँ. दे शुड अवॉइड शुगर Yes. इन सम एक्सटेंट. Definitely. तो उनकी स्किन क्वालिटी बेटर हो सकती है, राइट? Yeah. एंड आई थिंक जापान में शायद इसलिए है बिकॉज वो लेस शुगर कंज्यूम करते हैं. लाइक यू सी कोरियंस, यू सी जापानीज, यू सी सिंगापुरियंस, उनकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. दे वर वेरी नाइस स्किन. वो इसलिए कि दैट दे यूज़ लेस शुगर. जो सबसे हमारे रैपिडली जनरेटिंग सेल्स हैं वो स्किन एंड हेयर सेल्स हैं. कैंसर की कोई दवाई देते हैं तो वो इन दोनों को इसलिए सबसे पहले मारती है, क्योंकि कैंसर जो कीमोथेरेपी है वो सबसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को मारती है. इसलिए माउथ अल्सर्स होते हैं, बाल जाते हैं, स्किन खराब होती है. तो लेकिन ये जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, इनको एक अपनी मेम्ब्रेन के लिए फैट भी अच्छा चाहिए. इनकी डाइट्स में फ़िश होता है जिससे इनको मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी गुड. और उनका सोर्स ऑलिव ऑयल भी है, उनका सोर्स अदर सोर्सेज भी है. सो पीपल डोंट हैव टू ईट फिश. People can get that from vegetarian sources as well. And also, yes, regarding the sugar, I am not sure about that. I'll just be honest. Yeah. Okay. I think they eat a lot of fruits and vegetables, though. That's especially like seaweed. Seaweed has a lot of benefit as well. एक सवाल आता है मन में दैट आप देखते होगे सेलिब्रिटीज़ को कैंसर हो जाता है, उनको डिटेक्ट होता है कैंसर, और किसी नॉर्मल इंसान को कैंसर डिटेक्ट होता है. एक्चुअली होता क्या है कि दैट वो अब्रॉड चले जाते हैं एंड वो भी जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है वो ले लेते हैं उस चीज़ को और क्योर कर लेते हैं. लाइक संजय दत्त को कैंसर हुआ था तो उनका क्योर हो गया, एंड सोनाली बेंद्रे को कैंसर हुआ था, युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, एंड उनको बताया गया था कि दैट उनके पास बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बची हुई है युवराज सिंह को, बट उन्होंने उसको भी बीट कर दिया. सो एक आम इंसान के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है और एक सेलिब्रिटी के लिए अलग है. क्या इसमें रियली में कोई फ़र्क है? दैट इट्स ऑल अबाउट दैट आप कितना पैसा खर्च करके बेटर से बेटर ट्रीटमेंट ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा तो भी आप कैंसर का ट्रीटमेंट लेके सही हो सकते हो? जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उससे जिसके पास जो भी कोई ट्रीटमेंट सेंटर में जाएगा तो वही गाइडलाइंस फॉलो होंगी ट्रीटमेंट्स के लिए. अब इनकी सेलिब्रिटीज़ का मैं कैंसर रेजिमेंट जानता नहीं था कि किस स्टेज में है ये वो, बट डेफिनेटली कमेंट करूँगा कि अमेरिका में एक चीज़ होती है जो काफ़ी अच्छी है, वो है क्लिनिकल ट्रायल्स. वहाँ की R&D रिसर्च बहुत वो उस पर बहुत स्ट्रेस करते हैं. तो इफ़ देयर इज़ वन थिंग अबाउट अमेरिका, अबाउट बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक मेमोरियल स्लोन केटरिंग, जहाँ पे संजय कपूर he had got treated, MD Anderson, then they have a lot of clinical trials, ongoing research, ongoing trials. But the same treatment that you would get in an American institution with a approved therapy, वो therapy आपको Indian institution में भी मिलेगी. तो हाँ, तो ये है, लेकिन कि अब ये कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ है अमेरिका में यहाँ से 5 गुना ज़्यादा खर्चा होता है लोगों का
typically on average, and health insurance. That's what it is. Okay. But the caveat is that here, for people that are healthy, they don't have to pay as much because they're not paying for health insurance. But if they have cancer, then they have to pay for it. So of course, some therapies are more expensive than others, but there are ways to make it affordable. There are ways to make it affordable by modifying the dose, modifying the schedule. There's ways to do that. आपकी काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने देखा कि दैट आप बताते हो कि परफ्यूम आर ऑल्सो नॉट सेफ. जो लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें वो क्यों सेफ नहीं है? परफ्यूम तो मुझे भी मैं भी एक्चुअली आज सही बताऊँ तो मैं एक लगा के आया हूँ, बट नहीं लगा लाइक. बट परफ्यूम्स में थैलेट्स होते हैं, एंड थैलेट्स आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स दैट अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. So they've actually been shown, at least according to some studies, that they can affect the embryo health and so reproductive health. So that's one thing. And also, also just has there are compounds that have effects on just the hormones in the body. So endocrine jo perspective say, it's better to use natural sources of for these perfumes, for these colognes. That's what I would say. Essential oils. चाय आप बोलते हो कि दैट चाय भी ख़राब है. चाय का पीछे क्या रीज़न है कि दैट इंडिया में तो आपको सबसे पहले पता है कि दैट इंडियन सबसे पहले उठ के क्या पीते हैं? चाय. तो चाय क्यों ख़राब है? आपको वही अच्छा भी यही क्वेश्चन आपको इसलिए भी आएगा कि मैंने भी चाय नहीं दी आपको. बट चाय में चाय एक्चुअली हमारा स्टेपल है, राइट. बट हमें ऑप्ट करना चाहिए फॉर टी विदाउट मिल्क. एक तो विदाउट मिल्क. ओके. या क्योंकि एंड विदाउट शुगर. शुगर इज़ द मेन कल्प्रिट. एक तो शुगर का तो हम सभी को पता है कि एक चाय होती है तो फिर हम 2-3 चम्मच तो चीनी डालते ही हैं. बिल्कुल. और बाहर की जो ठेले वाली चाय है वहाँ पे तो मतलब जितनी ज़्यादा चीनी उतनी अच्छी, राइट. तो यही है कि चीनी जो है वो तो है ही नहीं अच्छी, राइट. उससे ओबेसिटी होती है, उससे ये वो. अब दूसरी बात यह है कि जो मिल्क है उससे जो टी में जो बेनिफिशियल चीज़ है कैटेकिन्स, उससे कैटेकिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और कैटेकिन्स के काफ़ी और हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं. वो मिल्क से स्टंट हो जाता है. तो चाय पी रहे हो बट लेकिन मिल्क के साथ पियोगे, चीनी के साथ पियोगे, तो यू आर जस्ट ड्रिंकिंग मिल्क एंड शुगर. एंड इट्स एक्चुअली बेटर कि आप ग्रीन टी पियो. ग्रीन टी इज़ एक्चुअली शोन in some reports to actually help reduce wrinkles, to reduce aging as well. अब लेकिन each compound, each natural thing I can say कि oh this will help aging, this will help aging, so it's very abstract by how much, but I'll definitely say this, अगर पीनी है तो टी पियो, और वो भी ग्रीन टी. हाँ जी. ओके. एंड बोला जाता है कि दैट टी से हेल्दियर थोड़ा कॉफ़ी रहती है. मुझे एक्चुअली टी और कॉफ़ी का कंपैरिजन आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट आई वुड ऑप्ट फॉर टी. यस, बिकॉज टी, ग्रीन टी, दैट अक्रॉस द बोर्ड सीम हैज़ बेनिफिट. एज अ डॉक्टर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा. हर किसी के ना एक कॉमन क्वेश्चन है इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियंस हैं. अब जब वेजिटेरियन की बात आती है तो उसके पास लेस प्रोटीन सोर्सेज हैं, बहुत कम प्रोटीन सोर्सेज रहते हैं. हर इंसान ये चाहता है कि सब लोग बोलते हैं कि अपने प्रोटीन सोर्स को बढ़ाओ, प्रोटीन को इंक्रीज करो बॉडी में. बेस्ट सोर्सेज क्या है अगर कोई वेजिटेरियन है कि वो प्रोटीन ले सकता है? ग्रीक योगर्ट, जो बेसिकली फिल्टर्ड घी है, फिल्टर्ड दही है. सो दही बहुत अच्छा है, उसमें प्रोबायोटिक्स है, उससे पेट भी अच्छा रहेगा. हमारे गट में एक टाइम पे 3 पाउंड यानी अबाउट 2 किलोस या 1.5 किलो बैक्टीरिया रहते हैं. तो जो ग्रीक योगर्ट है उससे हमारा जो गट का बैक्टीरिया है वो भी अच्छा रहेगा. गट से 90% सेरोटोनिन जो हमारी बॉडी का है वो रिलीज होता है, दैट्स द हैप्पी हार्मोन. तो ग्रीक योगर्ट विल कीप यू हैप्पी, कीप योर बैक्टीरिया हैप्पी, एंड उससे एक्चुअली मेटाबॉलिज्म भी बैक्टीरिया का अच्छा रहेगा, जिससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प होगी, और ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन भी है. तो दैट्स गुड. सेकेंड चीज़ आई वुड से सत्तू की बायोअवेलेबिलिटी लेकिन 60% है. बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कितना अब्जॉर्ब हुआ. अच्छा. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, दही की होगी करीबन 90 या उससे भी ज़्यादा, और वे प्रोटीन की भी 90 या उससे ज़्यादा है. लेकिन सत्तू इज़ अ गुड सोर्स बिकॉज बेसिकली जो चना है, चना का पाउडर, उसमें
30 ग्राम्स में करीबन मुझे ध्यान सा नहीं आ रहा कितना प्रोटीन है, बट इट्स अ गुड प्रोटीन सोर्स. अदर प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड पम्पकिन सीड्स, हेम्प सीड्स एंड आलमंड्स. अखाड़े में पहलवान जो भी होते हैं वहाँ चल रहा होता है, वो एक मुट्ठी बादाम तो खा ही लेते हैं. तो बादाम अच्छा सोर्स है, बट उससे अगर बेटर प्रोटीन सोर्स चाहिए तो फिर पम्पकिन सीड्स जिनमें जिंक होता है. पम्पकिन सीड्स इज गुड. ओके. एंड इंडियन जो पल्सेस होती है इनसे भी प्रोटीन मिलता है? इनसे मिलता है, बट लेकिन उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट अब्जॉर्ब होता है अल्टीमेटली, क्योंकि एक तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी रिलेटिवली कम है, यानी कितना अब्जॉर्ब होता है, और दूसरा जब दाल बनाते हैं तो एक कप से करीबन 7-8 कटोरी दाल बन जाती है. तो मतलब वो डिपेंड करता है कहाँ दाल खा रहे हो, बहुत लेस क्वांटिटी होती है, पानी ज़्यादा होता है. तो लेकिन थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं उसके, लेंटल्स के, दाल के. दाल अच्छी है, बट प्रोटीन के लिए खानी है तो फिर उससे बेटर है कि अदर प्रोटीन सोर्सेज लाइक टोफू बाय द वे एंड एडेमामे ऑल्सो. चलो ये तो ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं. पनीर इज द गुड सोर्स. पनीर आधा फैट है, तो पनीर एक्चुअली जिनको वेट गेन करना है उनके लिए यूज़ हो सकता है, यानी जो पतले हैं जिनको वेट गेन करना है. बट मैं खुद ही खाता था पनीर, बट इफ़ आई वाज टू गो बैक आई वुड नॉट ईट पनीर. मैं शायद टोफू खाता, या मैं शायद फावा बीन भी एक चीज़ है वो खाता, या पम्पकिन सीड्स. तो मैं ये कहूँगा कि पनीर अब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी जैसे उसे बनाओ, कोई सब्जी बनाओ पनीर के साथ, तो सारा तेल वो अब्जॉर्ब कर लेता है, जस्ट लाइक टोफू. तो पनीर बहुत टेस्टी है इसलिए, बट आई वुड नॉट से इट्स अ गुड प्रोटीन सोर्स. देयर आर बेटर प्रोटीन सोर्सेज. इट इज़ अ प्रोटीन सोर्स, बट देयर इज बेटर वंस. अगर बात करें कैंसर की, कौन सा सर ऐसा कैंसर है, मतलब कौन सा टाइप ऑफ ऐसा कैंसर है जो सबसे डेंजरस होता है, कि दैट अगर कोई इससे डायग्नोस होता है तो वो सबसे डेंजर कैटेगरी है कैंसर की? लिवर कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर, ये दो. पेनक्रियाटिक एंड लीवर कैंसर. लिवर कैंसर स्पेशली जो लिवर का एक एरिया है, हिपैटोबिलियरी एरिया, जहाँ पे एक डक्ट है, हिपैटोबिलियरी कैंसर एंड पेनक्रियाटिक कैंसर आई वुड से आर द वर्स्ट. दे आर द वर्स्ट. हाँ, बिकॉज उनके जो सर्वाइवर्स, मतलब जो ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स होते हैं उनका सर्वाइवल रेट रिलेटिवली सबसे कम होता है. ओके. अभी तक का कोई ऐसा सिंगल क्योर है टू ट्रीट कैंसर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स में डिफरेंट हैं. ब्लैडर कैंसर में एक नया रेजिमेन आया है, उसको मैं ऑन्कोलॉजिस्ट जो भी सुन रहे हों वो सुन सकते हैं. पेम्ब्रोलिजुमैब एंड फोर्टुमैब विडोटिन एक रेजिमेन है जो बहुत ही लोकली, काफ़ी बड़ा नाम है. हाँ जी, वो लोकली एडवांस ब्लैडर कैंसर या मेटास्टैटिक में काफ़ी उसकी अच्छी इंडिकेशन आई है. तो वो अच्छा रेजिमेन है. एंड दूसरा एक है मेलानोमा में. मेलानोमा जो स्किन का एक कैंसर है, उसमें इप्लीमोमैब, निवोलुमैब, वो एक्चुअली डॉक्टर जेम्स एलिसन जिनसे मैं मिला था उनकी उसी में रिसर्च थी, जो उन्होंने ही उनको उसको फाइंड करने में हेल्प किया था, जिन्होंने बट ये रेजिमेन अच्छा है. एनीवेज, नॉट टू सीम लाइक आई एम बोस्टिंग, बट लाइक देर आर एडवांसमेंट्स गोइंग ऑन. मतलब डिफरेंट क्योर्स अब बन रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कैंसर्स. या आई वुडंट से सिंगल क्योर है, लेकिन अभी आपने बताया कि दैट माइक्रोवेव यूज़ करने से भी कैंसर होता है. नहीं, ये तो मैंने शायद अगर बोला है तो ये मेरी गलती है. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है माइक्रोवेव में, उससे कैंसर नहीं होता. तो उससे कैंसर नहीं होता. एक चीज़ बोली जाती है, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? ऐसा बोला जाता है कि दैट कैंसर के क्योर्स अवेलेबल है, बट जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, या जितनी फार्मा कंपनीज़ हैं जो आप कह सकते हो जाइंट्स हैं, दे डोंट वांट कि दैट कैंसर का ट्रीटमेंट आउट हो, बिकॉज फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर इकोनॉमी, इट्स अ ग्रेट वे ऑफ मेकिंग मनी. बिकॉज क्या आपके इस पे, आप एज अ डॉक्टर, एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, आपके क्या व्यू है? मेरे व्यू ये है कि धीरे धीरे ट्रीटमेंट तो इम्प्रूव हो रहा है. इट सीम्स कि सारी ये कंपनीज साथ में compete कर रही हैं टू फाइंड द बेस्ट सोर्स, एंड अनलेस ऑल दीज कंपनीज हैड अ सिंगल ओनर, that would not seem true, unless they had a single owner, right? Like LVMH, it's a fashion brand that has a single owner, right? That, nothing like that, but like what I mean is that I would say that over the past 10 years there's been significant strides in pharmaceutical
advances. Yeah. एडवांसमेंट है, बट ऐसा है कि दैट कैंसर का ट्रीटमेंट आउट है, कैंसर का ट्रीटमेंट कहते हैं बन चुका है, बट फार्मास्यूटिकल जाइंट्स नहीं चाहते कि वो आउट हो. Not that I know of, to be honest. मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा ट्रीटमेंट आउट है, एंड ये कुछ मतलब एक थियरी है ये कि, बट इट जस्ट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हमारे कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतनी सारी हैं. इट्स जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट अनलेस ऑल ऑफ देम हैड अ सिंगल मेजर इन्वेस्टर या सिंगल मेजर ओनर. अगर ये बात होती तो फिर दैट वुड सीम पॉसिबल, बट इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट. ओके. एल्यूमिनियम फॉइल के आप बहुत बता रहे थे एक वीडियो में, आपने बताया कि दैट एल्यूमिनियम फॉइल में यूज़ नहीं करना चाहिए. टी बैग्स जो होते हैं वो उसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके पे क्या क्या रीजंस हैं? एलुमिनियम फॉयल से अब्जॉर्प्शन से डिमेंशिया के भी केसेस लिंक्ड किए गए हैं. एंड अच्छा. एलुमिनियम जब गर्म होता है खाना, उसमें एलुमिनियम फॉयल में रखा होता है, तो वो अब्जॉर्प्शन उस मतलब कुछ एलुमिनियम पार्टिकल्स उसमें जाते हैं. रिगार्डिंग एक टी बैग जो है, अगर सेल्यूलोस या मतलब एक बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड से बना हुआ पैकेट यूज़ करें तो उसके प्लास्टिक्स कम होंगे. बेसिकली प्लास्टिक फ्री कंपाउंड्स यूज़ करने चाहिए टी बैग में. आपकी एक नेचुरल प्रोटीन की एक रेसिपी है जो आपने रील पे बताई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट करा. एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप वो रेसिपी बता सको. डेफिनेटली. और मैंने एक्चुअली, आपको कैसी लगी बाय द वे? आपने पी भी है थोड़ी सी भी थी. इट वाज गुड. इट वाज गुड. ओके, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट. तो उसके अंदर बेसिकली 80 ग्राम्स का प्रोटीन है, एंड इट्स थैंक यू फॉर लेटिंग मी टॉक अबाउट इट. सो 80 ग्राम्स की प्रोटीन, नेचुरल प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोटीन रेसिपी इज, यू टेक आपके चॉइस का दूध, उसमें 3 ग्लास ऐड कर लो, या तो 1% फैट मिल्क या सोया मिल्क, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन या 20 से 30, वो हो गया. सत्तू का पाउडर लिया, अबाउट 100 ग्राम्स ले लिया, दैट्स अबाउट 4 बिग स्पून्स, दैट्स अबाउट 20-25 ग्राम्स प्रोटीन. आई थिंक आई हैव टू डबल चेक. pumpkin seeds के ले लिया about 30 grams, that's about 10 grams of protein. 10 to 15 grams if you take 30 to 45 grams, that's about 2 big scoops of pumpkin seeds. You take chia seeds के भी 30 grams, that's about 10 grams protein. And you take almonds थोड़े से लेना क्योंकि उसमें प्रोटीन कम, फैट ज़्यादा है. एंड उसमें गला ठीक रहे तो उसमें जिंजर भी ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी मेथी ऐड कर सकते हो. मेथी से टेस्टोस्टेरोन में इम्प्रूवमेंट भी नोटेड है स्टडीज़ में. हल्दी डाल सकते हो, जो करक्यूमिन है, जिससे मतलब बेनिफिट्स है, लेकिन हल्दी का फ़ायदा नहीं होगा अगर ब्लैक पेपर नहीं यूज़ करोगे. तो थोड़ा ब्लैक अच्छा, हल्दी के साथ ब्लैक पेपर का यूज़ करना कंपल्सरी? ब्लैक पेपर से अब्जॉर्प्शन बढ़ती है हल्दी की. ठीक है. एंड थोड़ा सा शहद एंड केला. सो आई से इट अगेन कि 80 ग्राम्स प्रोटीन रेसिपी, 3 चम्मच सत्तू, मतलब अबाउट 100 ग्राम्स, आलमंड्स, हेम्प सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, हनी, बनाना एंड चॉइस ऑफ मिल्क. तो इससे आप 80 ग्राम में एक रेसिपी बना सकते हो प्रोटीन के लिए. यस. ओके. सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी टाइम निकाला हमारे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर ऑथेंटिक शो टू हेल्प अदर पीपल. आई रियली रिस्पेक्ट, लाइक आई जस्ट मेट यू, एंड मुझे आपको मिलके जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया, not just for this show I'm saying, I just felt that you're actually trying to find out what the truth is and share with the viewers. Definitely. Thank you for the appreciation and आपकी जो नॉलेज है, जो आपने इतने साल के एक्सपीरियंसेस से गेन करी, आई थिंक हमारे व्यूअर्स की काफ़ी हेल्प होगी. बिकॉज कैंसर है या जितनी भी आप बीमारियाँ ले लो, बढ़ती जा रही हैं. एंड आई वांट कि दैट लोग हेल्दी रहें, जो हमारे शो को देख रहे हैं वो हेल्दी रहे, एंड उनकी लाइफ में नॉलेज है ताकि वो प्रिकॉशंस और इन चीज़ों को प्रिवेंट कर पाए. राइट. तो थैंक यू डॉक्टर गुप्ता फॉर हैविंग अस टू कम ऑन द आवर शो एंड इतनी वैल्यू ऐड करने के लिए. एंड डेफिनेटली विल मेक पार्ट 2 अबाउट दिस विद सम अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड नॉलेज. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो. अगर आपको इस एपिसोड से ज़रा सी भी वैल्यू मिली हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon
एंड अगर आप डॉक्टर रवि गुप्ता की आपको बातें बहुत अच्छी लगी तो मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन फॉलो हिम एज वेल. सो थैंक यू. अगर पसंद आया वीडियो तो उसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. एंड थैंक यू डॉक्टर रवि गुप्ता फॉर हैविंग अस. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. Thank you for having me on the Prateek show. Yeah. Thank you. Thank you.